Hello, dear students, how are you? I am Manoj. I am here to teach you NCERT Class 7th Honeycomb first chapter. Students, if you are watching me first time on YouTube, please subscribe my channel and press the bell button to get the latest notifications of this channel. This chapter is 3 questions, 3 प्रश्न। विद्यार्थियों, ये जो 3 प्रश्न हैं किसी राजा के मन में आते हैं। वो 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है। हम यह पता करेंगे कि ये जो 3 प्रश्न हैं जो राजा के मन में आ रहे हैं कौन कौन से हैं और क्या राजा इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान पाता है या नहीं। चलो पढ़ते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार किसी राजा के मन में यह विचार आया कि वह कभी फेल नहीं होगा अगर वह 3 चीज़ों के बारे में जान जाता है या उसको 3 काम करने आ जाते हैं। These 3 things were, ये 3 चीज़ें या 3 काम थे। What is the right time to begin something? किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। Which people should he listen to? किन लोगों की उसको सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do? उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में दूत भेज दिए यह वायदा करते हुए कि वह उनको बहुत सारा पैसा देगा अगर वे तीनों प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। Many wise men came to the king. कई बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। But they all answered his questions differently. परंतु उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग प्रकार से दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। And then follow it strictly. और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only in this way, केवल इसी ढंग से या इसी ढंग में they said, उन्होंने कहा could he do everything at its proper time. वह हर काम को निश्चित समय पर कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अन्य लोगों ने कहा कि किसी काम को करने के लिए सही समय पहले से ही निश्चित कर देना असंभव है। The king should notice all that was going on. राजा को नज़र रखनी चाहिए कि क्या घटित हो रहा है। Avoid foolish pleasures. बेकार के आनंदों से बचना चाहिए। And always do whatever seemed necessary at that time. तो राजा को वही काम करना चाहिए जो कि समय के हिसाब से आवश्यक हो। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की समिति की आवश्यकता है जो कि किसी काम को सही समय पर करने में
राजा की हेल्प कर सकते हैं। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. यह इसलिए था क्योंकि बगैर किसी की सहायता के अकेले आदमी के लिए हर काम का निश्चित या सही समय निश्चित कर पाना असंभव था। But then others said that there were some things which could be urgent. परंतु तब दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बहुत ही आवश्यक होते हैं। These things could never wait for the decision of the council. ये काम समिति के निर्णयों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. सही काम के लिए सही समय निश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि भविष्य में देखा जाए। यानी उनके कहने का मतलब है कि भविष्य वक्ताओं की भी आवश्यकता है। And only magicians could do that. और ये काम केवल मैजिशियंस कर सकते हैं। The king therefore would have to go to magicians. इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना होगा। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि उसके दरबारी उसके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। Others said the priest. कुछ लोगों ने कहा या दूसरे लोगों ने कहा पुजारी। A few others chose doctors. कुछ अन्य लोगों ने डॉक्टर को चुना। And yet others said that his soldiers were the most necessary. और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि उसके सिपाही उसके लिए बहुत आवश्यक हैं। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने विज्ञान को चुना, कई लोगों ने फाइटिंग को चुना और कुछ अन्य लोगों ने धार्मिक पूजा को चुना। As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर जो थे अलग अलग थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं था और उसने कोई इनाम नहीं दिया। Instead, इसकी बजाय he decided to seek the advice of a certain hermit. राजा ने किसी सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। Who was widely known for his wisdom. जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। The hermit lived in a wood which he never left. हर्मिट जो कि एक सन्यासी है, वह एक जंगल में रहा करता था और उसको कभी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people. वह साधारण लोगों से ही मिलता था। And so the king put on ordinary clothes. इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। तो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि राजा के जो कपड़े होते हैं कैसे होते हैं। अच्छा सुसज्जित होकर वो चलता है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अच्छा मुकुट होता है। तो वहाँ पर जब गया तो उसने साधारण कपड़े पहने। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. हर्मिट की झोंपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के साथ छोड़ दिया और वो अकेला चला गया। As the
किंग केम नियर द hermit's hut, जैसे ही राजा सन्यासी की झोंपड़ी के नजदीक पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. राजा ने देखा कि सन्यासी अपनी झोंपड़ी के सामने जमीन को सन्यासी जो है वो खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. उसने राजा का अभिवादन किया और लगातार खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. सन्यासी बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था और जैसे वो काम करता वो गहरी गहरी सांस लेता। Breathed heavily. The king went up to the hermit and said. राजा सन्यासी के पास गया और उसको बोला, I have come to you, wise hermit. कि बुद्धिमान सन्यासी मैं तुम्हारे पास आया हूँ। To ask you to answer 3 questions. तुमसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time? सही काम को सही समय पर मैं कैसे कर सकता हूँ या इसे करना सीख सकता हूँ। Who are the people I need most? किन लोगों की मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न, And what affairs are the most important? और कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो तीनों प्रश्न राजा ने सन्यासी से पूछ लिए। द hermit listened to the king. सन्यासी ने राजा को सुना, but did not speak, परंतु नहीं बोला। He went on digging. वो खोदता रहा। You are tired. तुम थक गए हो। said the king. राजा ने कहा, Let me take the spade and walk in your place. मुझे फावड़ा दे दो और अपनी जगह मुझे काम करने दो। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. अपना फावड़ा राजा के पास देते हुए सन्यासी ने कहा, धन्यवाद। Then he sat down on the ground. तो वह जमीन पर बैठ गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें आपको राजा नजर आ रहा है, साथ में हर्मिट नजर आ रहा है। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका था, he stopped and repeated his questions. वह रुका, उसने प्रश्न फिर दोहराए। The hermit gave no answer. सन्यासी ने उत्तर नहीं दिया, but stood up, परंतु खड़ा हो गया, stretching out his hand for the spade, और फावड़ा लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। And said, और कहा, now you rest, अब तुम आराम करो, and let me work, और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. परंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और लगातार खोदता रहा। 1 hour passed. Then another. 1 घंटा बीत गया। Then another. तब दूसरा। The sun went down behind the trees. सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया। And at last the king stuck the spade into the ground and said. और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। If you can give me no answer, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, tell me so, and I will return home. मुझे बता दो, मैं घर वापस चला जाऊंगा।
Here comes someone running, said the hermit. यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, said the hermit. सन्यासी ने कहा, अब ये दौड़ता हुआ कौन आ रहा है, इसके बारे में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे. Thank you so much for watching my video.